اچھا جی، پہلے آپ یہ چیز دیکھیں، یہ ایک، یہ دو، یہ تین اور یہ چار لوگ لگائے ہیں میں نے اپنی بائک کے اوپر۔ السلام علیکم، میں پاکستانی آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اچھا جی، ابھی میں نے آپ کو ایک ویڈیو دکھائی تھی جس میں نے اپنی بائک کے اوپر 4 لوگ لگائے، اور یہ حقیقت ہے، میری بائک میں ہر وقت 4 لوگ موجود ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ بھائی ہم اتنا سیکیور اپنی بائک کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا جو بھی چیزیں ہم سے ریلیٹ ہیں، موبائل وغیرہ، تو وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ تر وہ ہم اپنے پاس باہر نکلتے ہیں تو نہیں رکھتے، گھر پہ چھوڑ کے آتے ہیں۔ وجہ یہ ہے آج کی ویڈیو بنانے کی کہ ابھی کچھ دن پہلے میرے بھائی کی بائک چھن گئی سولجر بازار کی طرف، اور جب وہ کمپلین کروانے گئے تو ان کو پتا چلا کہ اسی جگہ پر تقریباً 4 لوگوں کی اور بائک چھینی گئی۔ تو بائک چھیننا، کسی کی بائک چلی جانا، کسی کا موبائل چلا جانا، کسی کی قیمتی سامان چلے جانا آج کے دور میں بہت تکلیف دہ ہے، کیونکہ میں ایک ٹیچر ہوں، میری کچھ بہتر تنخواہ ہے، لیکن اس تنخواہ میں بھی ہم تقریباً جو ہمارا گزارا ہوتا ہے کہ بس اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا گزارا ہو جاتا ہے، ہم اپنی خواہشات کو پوری نہیں کر سکتے۔ اگر ہمیں کوئی لیپ ٹاپ لینا ہو، کبھی موبائل لینا ہو، ایون کہ بائک بھی لینی ہو نا، تو ہمیں ایک سال 2 سال کی کمیٹیاں ڈالنی پڑتی ہیں، یا اب جیسے بقرعید آنے والی ہے تو ہمیں قربانی کرنی ہے تو اس کے لیے بھی ہم ایک کمیٹی ڈالتے ہیں۔ 2017 سے پہلے تھوڑا آسان تھا، تھوڑی سیونگس ہو جاتی تھی، لیکن 2017 کے بعد جو مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہے، 4 گنا 5 گنا مہنگائی بڑھی ہے، اس حساب سے لوگوں کی تنخواہیں نہیں بڑھی، جو میں اپنی اگلی ویڈیو میں اس کے بارے میں ڈسکس کروں گا۔ آپ ضرور اس کو چینل کو اگر آپ فالو کریں تو آپ کو اگلی آنے والی ویڈیو بھی ضرور مل جائے گی۔ تو ہم نوکری پیشہ افراد ہیں، اور کچھ تھوڑی سی سیونگ کر کے ہم کوشش کرتے ہیں 5,000 10,000 کی کوئی کمیٹی ڈالیں ہر مہینے، تو اس سے ہم اپنی ضرورت کی چیزیں لیتے ہیں۔ یہ تو میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، ہر کوئی جو ہے نا وہ سیونگ اتنی نہیں کر پاتا کہ وہ کمیٹیاں ڈالے ہر مہینے 5,000 یا 10,000 کی، تو 50,000 60,000 کمانے والا بندہ بھی آج کے دور میں کمیٹی نہیں ڈال سکتا، کیونکہ 20,000 میں تو اس کو اپنے بل پے کرنے ہیں، باقی 40,000 روپے میں گھر کا خرچہ کہاں سے ہوگا، پھر اس کے بعد کمیٹیاں کہاں سے ڈلیں گی۔ تو آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ اگر کسی کی بائک چھن جاتی ہے، موبائل چھن جاتا ہے، تو وہ بیچارے ریزسٹ اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ ایک بڑا انکم کا سورس ان کے ہاتھ سے چلا گیا، اور اب ایک بڑا مشکل وقت ان کے اوپر آنے والا ہے۔ اور جو بیچارے ریزسٹ نہیں کرتے، ان کی ویڈیوز بھی آتی ہیں، وہ روڈ پہ بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں لٹرلی۔ تو بڑے برے حالات ہیں بھائی۔ کچھ عرصہ پہلے آئی جی صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ کشمیر کے علاوہ باقی پورے سندھ میں امن ہے۔ بھائی یہی مسئلہ ہے پاکستان کا کہ پالیسیز میکرز جو ہوتے ہیں، جس بھی ادارے سے ان کا تعلق ہوتا ہے، اس ادارے کے اندر کے مسائل ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اب وزیر ٹرانسپورٹ کو آپ نے 2-3 کروڑ کی گاڑی دے دی جس کے اندر وہ سفر کرتے ہیں اپنا، چھوٹے موٹے روڈ کی کوئی کھڈے وڈے تو ان کو نظر ہی نہیں آتے۔ ایسے ہی کمشنر کراچی صاحب کے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ان کو اتنی اچھی لگژریز گاڑیاں دی ہوئی ہیں، یا میونسپل ہمارے میئر جو ہیں، تو وہ جن کھڈوں والے روڈوں سے گزرتے ہیں، ان کی گاڑیاں اتنی لش پش ہیں کہ ان کو یہ کھڈے محسوس ہی نہیں ہوتے۔ اسی طرح جو امن کو قائم کرنا جن کی ذمہ داری ہے، یا امن کو مینٹین کرنا جن کی ذمہ داری ہے، ان کو آپ نے پروٹوکول دیا ہے، ان کے پاس 10-10 20-20 گارڈ ہیں، ان کو کون آگے موبائل ان کا چھینے گا؟ آپ میں سے جتنے بھی لوگ یہ ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، میرا ان سے سوال ہے کہ آپ کی فیملی میں کوئی بھی ایسا شخص کہ جو آج تک بچا ہوا ہو کہ جس کا موبائل نہ چھینا ہو، پرس نہ چھینا ہو، یا کوئی قیمتی چیز جس سے چوری نہ ہو، یا بس کے اندر اگر وہ سفر کرتا ہے تو اچھا کوئی ایکسٹرا آرڈنری ہے جو اپنی گاڑی میں گھومتا پھرتا ہے، تو شاید ان کے ساتھ یہ واقعات نہ ہوئے۔ ہم بس میں سفر کرنے والے لوگ ہیں، ہم زندگی بس میں گزاری ہے، 2 بار میری ساتھ ٹکر بھی ہو چکی ہے۔ اچھا، ایک مرتبہ 2 مرتبہ جیب سے نکال کے لے گئے، گچھا ایک چڑھ جاتا ہے بس کے اندر، اور پھر وہ آپ کے موبائل نکال کے جیب سے قیمتی سامان نکال کے لے جاتا ہے۔ آج بھی ہو رہا ہے، یہ ٹاور سے لے کر یونیورسٹی روڈ تک ایسے بہت سے لوگ گچھے چڑھ جاتے ہیں اور وہ آپ کا جیب خالی کر دیتے ہیں۔
आप कुछ नहीं कर सकते, लोग डरते हैं कि हम कंप्लेन करेंगे तो अगली बार भी हमें यहीं से ही गुजरना है। असल में मसला ये है कि बहुत सी चीज़ों के अंदर खुद कानून नाफिज करने वाले इदारों के लोग मौजूद हैं, काली बिगड़े मौजूद हैं। कोई ऐसा जुर्म मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर और खासकर कराची के अंदर ऐसा नहीं है जो इनकी नॉलेज के बगैर होता। तो मैंने अपनी आंखों से कई मरतबा इनको गुटके के पठाने वालों से पैसे लेते हुए देखा है। ठेकेदार जो बिल्डिंग बनाते हैं उनकी छत डलती है तब आ जाते हैं, भाई ठेकेदारों को धमकाया हुआ है कि अगर आपने कॉल नहीं की तो फिर आपकी खैर नहीं। अच्छा भाई, चरस में ये मुलविस है, डकैतियों में ये मुलविस है, बड़ी तादाद इनके मुलविस है। खैर ये तो एक तंजिया या मजाहिया तौर पर यूसुफी साहब ने कहा था कि सिर्फ 99% करप्ट लोगों की वजह से आप 100% लोगों को करप्ट नहीं कह सकते। खैर मैं 99% भी नहीं कहता, क्योंकि बहुत अच्छे लोग भी हैं, मैं पर्सनली उनको जानता हूँ, पुलिस के अंदर हो या कानून नाफिज करने वाले दूसरे इदारों के अंदर हो या अदालतों के अंदर बैठे हो, बहुत से अच्छे लोग भी हैं जो रिस्पेक्ट करते हैं लोगों की, जो लोगों को मान देते हैं, जो उनके मसाइल को सुनते हैं, उनको हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बड़ी तादाद ऐसी है जो लोगों के मसाइल नहीं सुन रहे। अब आईजी सिंह का जो बयान था कि कश्मीर के अलावा बाकी पूरे सिंध में अमन है, तो साहब आप कभी हमारे साथ मोटरसाइकिल पे आए, तशरीफ रखिए हमारे साथ, बगैर प्रोटोकॉल के हम आपको एक कराची का राउंड दिलाते हैं, तो पक्का हमें आपके ऊपर यकीन है, भरोसा है कि इंशाल्लाह आपकी ये जो सोच है ना ये तब्दील हो जाएगी कि कराची में भी पक्के के डाकू मौजूद हैं, कराची में भी हालात अच्छे नहीं हैं, हजारों मोबाइल फोन, हजारों किस्म की कीमती अशियाएं लोगों की चोरी हो रही है, डकैती हो रही है। मसला ये है कि हमारे यहाँ कानून का निज़ाम अच्छा नहीं है। अभी मैं जिस सीट पे बैठा हूँ या हमारे एक दोस्त ये उनकी सीट है, उनसे मैं कुछ टाइम पहले ही बात कर रहा था, वो वीडियो पे तो नहीं है लेकिन उन्होंने अपना मसला बताया। उन्होंने बताया कि वो उनके इदारे में उनकी बाइक एक मरतबा बाइक खड़ी हुई थी और उसका लॉक लगा हुआ था पेट्रोल का, और बाइक चोरी हो गई। तो वो और उनके दोस्त बैठे हुए थे, तो जब वो बाहर निकले तो देखा बाइक नहीं है, लेकिन उनको ये अंदाजा था कि चूंकि इसके अंदर पेट्रोल लॉक लगा हुआ है तो जिसने भी चोरी की है वो दूर नहीं गया होगा। तो ये दोनों दोस्त निकले बाहर, दूसरी रोड के कॉर्नर पर पहुंचे तो उन्होंने उस शख्स को पकड़ लिया। तो उस शख्स को जब उन्होंने पकड़ा तो होता है ना कि जवान जो खून होता है और जोश होता है और वो एक वतनी होती है कि नहीं मैं ईमानदार हूँ और मैं उसको कैसे किरदार तक पहुँचाऊँगा। तो वो भाई साहब चले गए FIR कटवाने के लिए। जब FIR कटवाई तो उनके साथ उनके दोस्त भी थे जो गवाह की सूरत में वहाँ गए, कंप्लेन दर्ज हुई, FIR कटवाई, खुद चोर को ले गए, उसके हवाले किया। अच्छा भाई, उन्होंने कहा कि भाई आपकी बाइक भी जमा होगी और आप शाम तक कानूनी कार्रवाई होगी और फिर आप अपनी बाइक ले जाइए। तो लिटरली रोते हुए इन्होंने बताया कि जब वो शाम को गए अपनी बाइक लेने के लिए तो वो कहते हैं कि भाई आप कोई कानूनी कार्रवाई आज नहीं हो पाई, आप कल आए। फिर कल गए, फिर परसों गए, 5 दिन धक्के खाते रहे अपनी बाइक के लिए, उनको बाइक नहीं मिली। अच्छा भाई, फिर जब उन्होंने रजिस्ट किया कि भाई हम बताएं सब कुछ आपका काम भी मैं ही कर रहा हूँ और मेरी बाइक आपने ली हुई है, ये मसला हल कैसे होगा? तो उन्होंने बताया कि भाई आप जज साहब के पास हैं, ये यहाँ बैठे हुए हैं, इनके पास आपका केस है, आप जाके इनसे एक साइन लेके एक लेटर बनवा के। ये जनाब खुद गए वहाँ पे, जाके उन्होंने कोशिश की, लाइन में लगे और तकरीबन 1000 रुपये कहीं दे के और इसी तरह से उन्होंने जज तक रसाई हासिल की और उनसे लेटर साइन करवा के ले आए। जब यहाँ पहुँचे तो उन्होंने बताया कि भाई अब आपको नाजमाबाद में एक और इदारा है, वहाँ से जाके भी लेटर लेके आना होगा। कह रहे हैं फिर वहाँ गए, वहाँ 1.5 घंटे हम खुआर हुए और खुआर होके किसी तरह हम वहाँ से भी लेटर लेके आए। अच्छा भाई, फिर बताया कि भाई अब आपको तीसरा लेटर भी लाना है, उसके लिए आपको CPLC के ऑफिस जाना होगा और वहाँ से आप तीसरा लेटर। अब ये शख्स के जिसने खुद अपनी बाइक बरामद की है, चोर को पकड़ा है, हवाले किया है, 6 दिन से खुआर है और अब ऑफिस के धक्के खा रहा है कि अपनी बाइक छुड़वाए। अब बताएं ये अलमिया है नहीं। फिर CPLC के ऑफिस गए जहाँ उन्होंने बताया कि उस वक्त तो SHO साहब या ऑफिसर मौजूद नहीं थे, लेकिन वहाँ कुछ आसानी से काम हो गया। फिर तीसरा लेटर लेके आए तो अपनी बाइक उन्होंने छुड़वाई वहाँ से। और उन्होंने बताया जब तक वो तीसरा लेटर लेके आए तब तक इनके जेब भी खाली हो चुके थे। तो ये अलमिया है। फिर उनको कॉल आती है कि भाई अब आपका केस लग गया है तो इस तारीख को आप आ जाएं तो आपका केस होगा।
उन्होंने बताया हम चले गए गवाह के साथ, अपने दोस्त के साथ, और 2-3 घंटे हम बैठे रहे, और बैठे रहने के बाद बल्कि खड़े रहे, बैठने की जगह भी नहीं थी। फिर हमें किसी ने आके बताया कि भाई आज जज साहब नहीं है। तो बोला, फिर हम सवार होकर वापस आ गए। तो फिर एक हफ्ते बाद बोले थाने से कि भाई आज फिर आपको जो है वो आना है, और आपकी यहाँ पे केस है, तो आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा, गवाह के साथ आना पड़ेगा। तो ये फिर मुझ पे वतनी का और ईमानदारी का मुजाहरा करते हुए चले गए। और उन्होंने बताया कि 2-3 घंटे फौर होने के बाद पता चला कि आज जो वो चोर साहब है, चोर साहब के वकील साहब नहीं है, क्योंकि उनका हाईकोर्ट में कोई केस था। तो जनाब, ये टेक्टिक्स होती हैं कि आपको किस तरह से लोगों को परेशान करना है। तो उन्होंने कहा कि हमने हाथ जोड़ के एसएचओ साहब से कहा कि भाई हमसे रिटर्न में ले लो कि हम अपना केस वापस लेते हैं। ये खुआरियाँ, ये जिल्लत हमें नहीं चाहिए कि जहाँ पर खुद सब कुछ हम आगे आके अपना मामला तय करने के लिए आ रहे हैं कि किसी को सजा हो जाए जिसने जुर्म किया है, लेकिन आप मसले को हल ही नहीं करते। तो कई साल तक इस तरह के केसेस चलते हैं। तो कई तरह से आपको तंग किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। ये हमारा निज़ाम, ये बदबूदार निज़ाम, जहाँ आप खुद चोर को पकड़ रहे हो, जहाँ चोर पकड़ा ही ना जाए। ये चीज़ें मेरे मुंह से इसलिए निकल रही हैं, ये अल्फाज मैं इसलिए अदा कर रहा हूँ क्योंकि अब तो हमारे साथ तो कई मरतबा ये वाक़या हो चुका है। भाई के साथ पहले भी डकैती हो चुकी, मेरे साथ 2 मरतबा डकैती हुई, 1 मरतबा जेब से निकाल के ले गए, और कई मरतबा मामला है। मोबाइल घर से लाते हुए मैं परेशान होता हूँ कि भाई कोई ले ना जाए। बाइक पे निकलते हैं तो हमें पता नहीं है कि घर वापस हम पहुँचेंगे और बाइक के साथ पहुँचेंगे या नहीं, ऐसे हालात हैं। तो कैसे ये सारा मामला हो रहा है, कैसे इनकी नज़र के बगैर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इनके नॉलेज में ये चीज़ें ना हो। तो ये बड़े बुरे हालात हैं कराची के। मैं समझता हूँ सिर्फ कराची के नहीं, ये हर शहर के यही हाल है। निज़ाम हमारा बिल्कुल बदबूदार हो गया है, निज़ाम बर्बाद हो गया है। इस निज़ाम को ठीक करने की बहुत ज़रूरत है। पहला काम तो ये करना है हमें इस निज़ाम को बदली करने के लिए कि मराद याफ्ता तबके की तमाम मराद खत्म करें, इनको तनख्वाह दें, जितनी भी तनख्वाह दें, बोनस वोनस कुछ भी ना दें। ये अपनी गाड़ी खुद खरीदें, ये अपना पेट्रोल खुद डालें, और ये अपनी तहफ़्फ़ुज़, ये अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करें। तब इनको पता चलेगा कि भाई महंगाई कितनी हो गई है। ये अपना बिजली का बिल खुद भरें, ये अपना गैस का बिल खुद भरें, तब इनको पता चलेगा कि सिलेक्ट चेंज क्या होता है। गैस के बिल में 50, 60, 80, 90, 100, 10 यूनिट के ऊपर सिलेक्ट चेंज हो रहा है, और फिर उसके बाद फिक्स चार्जेस लग रहे हैं बहुत अलग। तो ये मराद याफ्ता तबके को ये पता ही नहीं है कि आपको गली के कोने पे कोई आके लूट के चला जा रहा है, कोई आपके बच्चों को लूट रहा है, कोई मार रहा है, कोई किसी को किस तरह से अजियत दे रहा है। अभी दोस्त बता रहे थे कि भाई वो कुछ दिल बर्दाश्त हो कि यहाँ पर जंगल का कानून है। मैं समझता हूँ जंगल का भी कानून नहीं है यहाँ, क्योंकि उस जंगल के कानून के भी कुछ उसूल होते हैं, या कोई उसूल नहीं। तो बड़े बुरे हालात हैं, इसके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहला काम तो यही करना है कि मराद याफ्ता तबके के मराद को ख़त्म करना है, बहुत 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 ज़रूरी है। उसके बाद ही इस मुल्क के अंदर महंगाई कुछ कम होगी, उसके बाद ही इस मुल्क के अंदर अमन व अमान की सूरत शायद कुछ बेहतर होगी। वैसे मुझे लग तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी इन 2 चीज़ों की वजह से, एक तो उनकी मराद ख़त्म की जाए, दूसरा ये किया जाए कि सज़ा दी जाए, जज़ा और सज़ा का कॉन्सेप्ट लाया जाए। जज़ा और सज़ा का कॉन्सेप्ट जब तक नहीं आएगा, जब तक आप लोगों को सज़ा नहीं देंगे, फांसी नहीं देंगे, जब तक लोगों को बेल मिलती रहेगी, तब तक इस निज़ाम के ऊपर लोग फूटते रहेंगे, लोग इस पर लानत भेजते रहेंगे। और खासकर जो उम्रा हैं, जो पैसे वाले हैं, जो पावर वाले हैं, वो इस निज़ाम को अपने घर की लोंडी समझ के रखेंगे, इस कानून की इज्जत नहीं करेंगे। अगर आपको अपने इदारों की और अपने कानून की, अपने मुल्क की इज्जत करवानी है, तो आपको कानून बनाना होगा और कानून पे अमल करना होगा। मौजूदा असम्बली से तो हमें ऐसी कोई भी किसी भी तरह से ऐसे हमें कोई उम्मीद नहीं है, ना कोई सूरत नज़र आती है। क्योंकि अगर कुछ होना होता तो पिछले दिनों जो कश्मीर के अंदर हुआ, या रहीम यार खान, राजनपुर और इन कच्चे के डाकुओं ने जो कुछ लूट मार मचाई है, खुद हमारे साथ मुल्तान से सक्कर जब मोटरवे हमने क्रॉस किया, कराची आ रहे थे, तो
फैसल मूवर्स की बस पे हमला हुआ, ईंट फेंक के मारी गई, उसका शीशा टूट गया। ये तो हमारी खुशकिस्मती थी कि ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी। अगर ड्राइवर गाड़ी रोक लेते तो फिर हमारे साथ पता नहीं क्या होता। एक सोशल मीडिया आने पे हमारा सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाने से एक नुकसान मुझे ये भी हो सकता है कि इससे मेरे घर वालों को बहुत सी ऐसी चीज़ें मालूम पड़ जाएंगी कि जो आज तक हमने उनको नहीं बताई। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ये सारी चीज़ें क्योंकि सोशल मीडिया पे दूसरे लोगों को अवेयर करने के लिए बतानी पड़ेगी, तो इस वजह से शायद मेरे घर वालों को भी पता चल जाए। तो कोई बात नहीं, थोड़ा एक कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। आप तमाम जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर आप जो है अपना ख्याल रखें, अपनी कीमती अशिया का ख्याल रखें और सबसे ज़्यादा अपनी जान का ख्याल रखें। जब तक कि कोई ऐसा मामला नहीं आता, कोई असम्बली में बैठे हुए ऐसे लोग नहीं आते जो कि कानून के रिट कायम ना कर दें, जो कि सज़ा का और जज़ा का कोई तस्वुर कायम ना कर दें। रेपिस्ट को जब तक सज़ा नहीं होगी तब तक मसला हल नहीं होगा। चोर को, डाकू को, कातिल को जब तक सज़ा नहीं होगी तब तक मसला हल नहीं होगा। करप्ट अफसरान और सियासतदान को जब तक सज़ा नहीं होगी तब तक मसला हल नहीं होगा। तो बड़े मसाइल सज़ा बहुत ज़रूरी है। अगर वो मोटरवे वाले वाक़ये का आपको याद हो तो आपको पता है कि उस शख्स ने उससे पहले भी कई रेप किए और रेप करने के बाद हर मरतबा उसकी बेल हो जाती। तो अगर उसके पहले रेप जब उसने किया था उस वक्त ही उसको सज़ा हो जाती, सज़ाए मौत हो जाती तो और अच्छा होता। तो फिर ये मोटरवे का वाक़या हमारे यहाँ ना होता, तो पूरी दुनिया में हमें ज़िल्लत ना देखनी पड़ती। तो रिक्वेस्ट है मेरी उन तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों से और उसमें काम करने वाले लोगों से, इम्प्लीमेंट करने वालों से, सज़ा देने वालों से कि लोगों को बेल मत दें। बराए मेहरबानी जिन लोगों के ऊपर जुर्म साबित हो रहा है, इस तरह के जो केसेस आ रही हैं, उन केसेस को ऑन द स्पॉट आप हल करने की कोशिश करें। बहुत सी टेक्निक्स अपनाई जाती हैं, कभी वकील गायब हो जाते हैं, कभी कोई बीमार हो जाते हैं, कभी कुछ केयर कर दिया जाता है ताकि धीरे से धीरे हो और जो मुद्दई है वो परेशान होकर भाग जाए। तो बड़ा काम करने की ज़रूरत है। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम दोस्तों से कि अपना ख्याल रखें, अपनी कीमती चीज़ों का और ख़ासकर अपनी जान का ख्याल रखें। अपनी जान और माल का खुद तहफ़्फ़ुज़ करें, लेकिन इससे किसी दूसरे को नुकसान ना पहुँचाएं। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।